Assalamu alaikum. My name is Rahat Jabin from Division of Arts and Social Sciences for the subject of History of Western Art. Today we discuss Expressionism. Expressionism is an art movement of late 20th century. Today we discuss the inspiration, famous artists, main characteristics of Expressionism, origin of Expressionism. इंस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट figures like symbolist Vincent van Gogh, Edward Munch and James Anson were the main inspiration for the expressionism movement. फेमस आर्टिस्ट इसके जब हम बात करते हैं एडवर्ड मंच, वेस्ले कंडिंस्की, अर्नेस्ट क्रिंचर. Introduction. As a movement, the term Expressionism usually denoted the late 19th century, early 20th century school of emotive or interpretive art, which emerged in Germany as a reaction to the more passive style of impressionism. कि जो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट थी वो लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी की मूवमेंट थी जो कि जर्मनी में स्टार्ट हुई थी, जो कि ऑपोजिट थी इम्प्रेशनिज्म के, एक रिएक्शन में स्टार्ट हुई थी इम्प्रेशनिज्म के. Expressionism art is style in which the artist seeks to depict not objective reality but rather the subjective emotion and responses that object and events arose within the person. कि अब ये क्या था इम्प्रेशनिज्म में, जैसे हमने देखा कि लोगों का जो एक तासुर था जो उनको पहले दफ़ा किसी चीज़ को देखने पे मिलता था वो लोग वो पेंट करते थे, बट एक्सप्रेशनिज्म में जो था वो चीज़ चेंज होगी. दे एक्सप्रेस सब्जेक्टिवली देयर इमोशंस एंड रिस्पॉन्स of their object and events according to their individual emotion. The artist accomplishes this aim through distortion, exaggeration, primitivism, and fantasy, and through the vivid, jarring, violent, and dynamic application of formal elements. अब एक्सप्रेशनिज्म में जो मेन चेंज था वो क्या था कि लोगों ने ज़्यादा एग्जेजरेट करना चीज़ों को स्टार्ट करी था, डिस्टॉर्शन आ गई थी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में, और एक फैंटेसी की तरफ जो थे वो लोग चले गए थे. In a broader sense, Expressionism is one of the main current of art in the later 19th and 20th century, and its qualities of high subjective, personal, spontaneous self-expression are the typically of a wide range of modern artists and art movement. अब ये क्या था कि अभी तक की जितनी भी मॉडर्न मूवमेंट थी एक्सप्रेशनिज्म उनमें जो था सबसे एडवांस था, जिसमें जो था बहुत जो था वो एक इमेजिनरी चीज़ आ गई थी. लोगों का जो इंडिविजुअल का अपना सब्जेक्टिव वो एक्सप्रेशन था वो ज़्यादा in हो गया था. Expressionism can also be seen as a permanent tendency in German and Nordic art from at least the European Middle Age, particularly in time of social change and spiritual crisis. In this sense, it formed a converse of the rationalist and classicizing tendencies of Italy and later on France. अब ये क्या था कि जो उस टाइम पे एक ट्रेडिशनल सा काम हो रहा था, एक टेंडेंसी से रेगुलर टेंडेंसी से काम हो रहा था, अब ये क्या था वो चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हो गई थी. More specifically, Expressionism are a distinct style or movement refers to a number of German artists as well as artisan French and Russian ones who become active in a year before World War One and remain so throughout much of the interwar पीरियड. अब ये क्या था कि इसमें जर्मन ही नहीं थी, इसमें ऑस्ट्रियन भी थे, फ्रेंच भी थे और रशियन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने वो जो कि इस सेम स्टाइल पे या सेम आइडियोलॉजी पे जो थे वो काम कर रहे थे. द क्लासिकल फेज ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट lasted from approximately 1905 to 1920 and spread throughout Europe. Its example would later powerfully inform many individuals and groups such as abstract expressionism, new expressionism and the school of London. अब ये क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर जो था वो वन का टाइम पीरियड जो ख़त्म हुआ, लेकिन जो इंटर वॉर पीरियड जो था वो चल रहा था, उसी टाइम पे जो था वो ये चीज़ एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट जो थी वो एंड हो गई. लेकिन जो फिर उसके बाद जो मूवमेंट आई उस वो लोगों ने जो काम किया वो उसको हम तीन में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, नियो और द स्कूल ऑफ लंदन में जो है वो करते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मूवमेंट वाज यूज ऑफ इंटेंस कलर्स, thick and distorted traces, focus on subjective aspects, tragic vision of human being, exposure to the pessimistic side of life,
demorphation, deformation of the reality of the world, expression of individual freedom, use of three dimensionality in work. अब बेसिक वो था उनका आइडियोलॉजी का जो चेंज था वो ये था कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस अपना जो एक्सप्रेशन था वट एवर दे फील टूवर्ड एनी सब्जेक्ट और एनी इवेंट और एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या थे वो उन्होंने वो पेंट करना स्टार्ट कर दिया था. Origin of Expressionism. The word Expressionism was first used in 1850, mostly to describe the painting where an artist's strong emotion were clearly depicted. कि क्या था कि सबसे पहले जो था एक्सप्रेशनिज्म का वर्ड वहाँ पे यूज हुआ जब जो था वो किसी एक आर्टिस्ट के काम को देख के जो कि इमोशनली डिपिक्शन थी उसके काम की, उसको देख के एक्सप्रेशनिज्म का वर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ था. द पॉपुलेटिव एक्सप्रेशनिज्म इंक्रीड व्हेन एंटोनियन मेट्रिक in 1910 coined the term. With this word of Czech art historian intending to denote the opposite of Impressionism and indicate one of the main currents of arts that express highly subjective, personal, spontaneous self-expression टिपिकल ऑफ द वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न आर्टिस्ट. अब ये क्या था कि एंटोनियो ने जब दोबारा से ये वर्ड एक्सप्रेशनिज्म जो टर्म थी वो यूज़ की, तो उस टाइम पे जो क्या था कि बहुत ही हाईली एक्सप्रेसिव काम हो रहा था, पर्सनल और स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्सप्रेशन पे काम हो रहा था, आर्टिस्ट उस चीज़ पे काम जो थे वो कर रहे थे. Expressionism emerged simultaneously in various cities across Germany as a response to a widespread anxiety about humanity, increasingly discordant relationship with the world, and accompanying lost फीलिंग्स ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड स्पिरिचुअली. अब ये क्या था कि ये टाइम था वर्ल्ड वॉर का. वर्ल्ड वॉर का ऑब्वियसली जब टाइम था तो लोग जो थे वो बहुत एनजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे. तो उस टाइम पे जो लोगों ने अपना एक सेल्फ एक्सप्रेशन लोगों किया वो जो था स्पिरिचुअली ऑथेंटिकली जो लॉस्ट फीलिंग थी उनको जो वो बेसिकली उन्होंने वो पेंट की थी. द रूट्स ऑफ जनरल एक्सप्रेशनिस्ट स्कूल ले इन द वर्क ऑफ विंसेंट वैन गॉफ, एडवर्ड मंच एंड जेम्स answer, each of whom is a period 1885 to 1900 evolve a highly personal style painting. अब ये तीनों जो आर्टिस्ट थे these are the main figures of this moment जिन्होंने जो था अब मैंने इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशनिज्म में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम किया था. These artists use the expressive possibilities of color and line to explore dramatic and emotional laden themes, to convey the qualities of fear, horror, and gnostic, and simply to celebrate nature with hallucinatory intensity. They broke away from the literal representation of nature in order to express more subjective outlook and state of mind. अब ये क्या था कि इन लोगों ने जो था अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन पे और स्टेट ऑफ माइंड पे जो उस टाइम पे उस पेंडेमिक सिचुएशन में जो एक चीज़ थी उस चीज़ पे जो उन्होंने अपन काम किया, वो उनकी जो सब्जेक्ट थे वो वही फेयर हॉरर और जो थे वो इस तरह से थे जो सिंपली जो है वो रिकग्नाइजेबल नहीं थे, इनडायरेक्टली जो हम उसको कह सकते हैं वो चीज़ जो है वो अपने कैनवस पे पेंट करते थे. Key ideas and accomplishments. The arrival of Expressionism announced new standard in the creation and judgment of art. कि जब Expressionism आया तो एक जो एक स्टैंडर्ड था नॉर्मल आर्ट को बनाने का या जजमेंट ऑफ आर्ट का वो जो था वो चेंज हो गया. Art was now meant to come forth from within the artist rather than from a depiction of external visual world. कि क्या था कि वो टूवर्ड आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस हो गया जाके उसके कि जो वो चीज़ जो है वो एक्सटर्नल वर्ड के. एंड द स्टैंडर्ड ऑफ assessing the quality of artwork became the character of the artist feeling rather than an analysis of the composition. अब ये क्या था कि उन्होंने आर्टिस्ट को जो है वो उस पे उसको ज़्यादा फोकस किया ना कि उसकी कंपोजिशन पे या उसके काम पे. Expressionist art often implied swirling sways and exaggeratedly executed brushstrokes in the depiction of their subject. अब ये क्या था कि उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही एग्जैजरेटेड था, बहुत ही कर्विकल और कर्ल लाइन में swirls लाइन जो थे वो यूज़ करते थे. These techniques were meant to convey the turgid emotion state of the artist reacting to the anxieties of the modern world. अब ये क्या था कि उस टाइम पे जो एंजाइटीज़ लोगों की थी उस चीज़ को जो थी वो स्टाइल जो था वो डिपिक्ट करता था.
Their representation of the modern city include alienated individuals, a psychological byproduct of recent urbanization, as well as prostitution, who were used to comment on capitalism role in emotional distancing और within the cities. अब ये था कि उनके सब्जेक्ट मैटर भी जो थे वो चेंज हो गए. उन्होंने जो था वो जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, अर्बन लाइफ जो थी वो ज़्यादा हो गई और अर्बनाइजेशन आना शुरू हो गई, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो था उसका वो भी उन्होंने था वो उस चीज़ पे काम किया. जब हम इसके आर्टिस्ट की बात करते हैं, एडवर्ड मंच इज़ अ प्रोलिफिक फिगर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म. Edward Munch was a prolific yet perpetually troubled artist, preoccupied with matter of human mortality such as chronic illness, sexual liberation and religious aspiration. अब ये क्या था कि इनके कुछ हर आर्टिस्ट का एक पर्सनल जो था वो क्लैश था सोसाइटी के साथ. उसमें उनकी कुछ तो थी वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो थे वो इल थे, कुछ जो थे वो सेक्सुअल लिबरेशन और रिलीजियस एस्पिरेशन जो थी उस पे जो था उनका काम जो था या उनकी डिबेट्स उस पे ज़्यादा होती थी. He expressed these obsession through work of intense color, semi-abstraction and mysterious subject matter, following the great trump of French Impressionism. Munch took up the more graphic, symbolistic sensibility of the influential Paul Gauguin and in turn became one of the most controversial and eventually renowned artists among new generation of continental expressionist and symbolist painter. अब ये क्या था, जो इसका जो काम था वो इतना सिंबलिस्टिक और जो था वो एसेंशली वो काम था, उसके सब्जेक्ट मैटर कुछ इस तरह से थे कि वो बहुत ही उसका काम कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के साथ साथ उसको जो था वो बहुत फेम भी मिला. अभी उसकी एक फेमस पेंटिंग है द सिक्स चाइल्ड जो है, आप देख रहे होंगे कि उसके ब्रश स्ट्रोक भी देख रहे होंगे और उसकी जो एक एंगल है या उसका पेंट करने का तरीका. इस तरह से ये एडवर्ड मंच की वन ऑफ द फेमस पेंटिंग द स्क्रीम है, कि बेसिकली आप देख रहे होंगे कि उन्होंने जो एक मेंटल कॉन्शियसनेस को जो बेसिकली आप कह सकते हैं उन्होंने वो पेंट करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अपने एक्सप्रेशन जो थे वो पेंट किए थे. इसी तरह से स्प्रिंग प्लजिंग ये भी आप देख रहे होंगे, बहुत ही कलर एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे किस तरह से है, और जो पीछे लैंडस्केप है उसका एंगल जो है पर्सपेक्टिव जो है वो किस तरह से. सेकेंड इज वेस्ली कंडेंसिंग, वन ऑफ द पायनियर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न art. Wesley Kandinsky exploit the evocative interrelation between color and form to create an aesthetic experience that engaged the sight, sound and emotion of the public. अभी क्या था कि इसका काम जो था वो बहुत थोड़ा डिफरेंट काम था लोगों से, कि ये बहुत कलर और एक एस्थेटिक कंपोजिशन के साथ जो था वो वेस्ले जो था वो काम करता था. ही बिलीव दैट टोटल एब्स्ट्रैक्शन ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोफाउंड transcendent expression and that copying from nature only interfere with the this process के जब अगर बहुत अगर हम एब्स्ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो वो एक चीज़ जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बहुत जो है वो उस वो कहीं पीछे जो है वो रह जाता है. Highly inspired to create art that communicate a universal sense of spirituality, he innovated a pictorial language that only loosely created related to the outside world, but expressed volume about artist's inner expression. कि इसने जो था एक विजुअल जो है वो लैंग्वेज जो है आप कह सकते हो कि इसने पिक्टोरियल लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की थी या डिस्कवर की थी, इनोवेट की थी, जिससे ये जो वर्क एक आर्टिस्ट के अपने इनर एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस को जज करने के लिए. हिज विजुअल वोकेबलरी डिवेल्प्ड through three phases, shifting from his early representational canvases and their divine symbolism to his repertoires and operative composition to his late geometrical and biomorphic flat planes of work. And his art and ideas inspire many generation of artists from his student at the Bauhaus of the abstract expressionism after World War II. अब ये इसका काम आप देख सकते हैं कि इसका जो था कि कलर एप्लीकेशन भी देख सकते हो, जो इनकी एक विजुअल कह सकते लाइक विजुअल इमेजनरी हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली वो पेंट करते थे. इसी तरह से डी ब्लू बर्ग है, द ब्लू माउंटेन के बेसिकली जो क्या था कि उनकी जो उनका एक विजुअल एक्सप्रेशन था उन्होंने वो पेंट करना स्टार्ट कर दिया था.
इसी तरह से कंपोजिशन थी, क्योंकि वो वेस्ले का जब उसका काम एंड एज पे, लेट एज पे आके उसने ज़्यादा जो काम था वो कंपोजिशंस पे किया था, ज्योमेट्रिकल बायोमॉर्फिक प्लेटफॉर्म्स में वो ज़्यादा जो है वो आ गया था। इसी तरह से ऑस्कर कोकोसाका जो है वो भी मूव डेयरली फ्रॉम मोर डेकोरेटिव स्टाइल इनटू अ बोल्ड रेसी एक्सप्रेशनिज्म में जो है वो आए थे। अब उन्होंने भी था, इनकी इंस्पिरेशन जो एडवर्ड मंच के काम से ये इंस्पायर्ड होके जो थे वो बेसिकली इसमें जो थे एक्सप्रेशनिज्म में आए थे। His disorientating composition used bold brushstroke and strong color to confront the viewer. His freedom from stylistic constraint, as well as his belief in the power of art to raise awareness of contemporary problems, set an example for artists from an abstract expressionism in the mid 20th century to the new expressionism of the late 20th century. अब ये जो आर्टिस्ट है इनका मानना था कि we can also convey मैसेजेस एंड अवेयरनेस टू द पब्लिक, कि बेसिकली जो हम लोग जो है आर्टिस्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो जो एक अपने आर्ट के थ्रू जो है वो अपनी सोसाइटी में या अपनी पब्लिक को जो है वो अवेयर कर सके। और ये इसी तरह से जो है वो उनका काम में भी हमें ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। इस तरह से एक सिलेक्शन फ्रॉम द ड्रीमिंग बॉय, ये एक उनका एक इलिस्ट्रेशन आप इसको कह सकते हैं, जो कि उन्होंने एक मैगजीन के लिए की थी, फोटोग्राफिक। उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और मिनिमल कलर भी देख सकते हैं आप किस तरह से है। इसी तरह से ये एक हैंस टेंजिया टेटजी एंड एरिका टेटजी, ये एक पोर्ट्रेट था। आप देख रहे होगे कि उसके बैकग्राउंड में आपको बहुत ही कलरफुल और किस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये भी आ जाता है टेम्प्स। अब आप देख रहे हो कि इवॉल्व किस तरह से होता है एक आर्टिस्ट। आपने उसका पहला काम देखा वो किस तरह से था, आपने उसका दूसरा काम देखा वो किस तरह से था, आपने अभी अभी उसकी तीसरी आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये टोटली उन दोनों पेंटिंग से डिफरेंट है। क्योंकि आर्टिस्ट की इवॉल्वमेंट होती है, उसके एक्सपीरियंस के बाद जो वो है अपना एक स्टाइल जो है वो डिवेल्प करता जाता है, तो वो चीज़ जो है वो इन्हेंस होती जाती है। ये आज के आपने मूवमेंट पर ये एक्सप्रेशनिज्म होपफुली कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।